ৱেলকাম টু ব্ৰাইট এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকৰ কাৰণে মই सोशल साइंसर कम्पार्टमेंटल पेपर तो লৈ আহিছোঁ। सो कम्पार्टमेंटल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैं ইয়াত দুটা ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিম, এটা অসমীয়া আৰু এটা হ'ল হিন্দী। সো ইয়াত মই দুটা ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিম। আকৌ কৈ আছোঁ কাৰণ এটা অসমীয়া মাধ্যম যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতে মানে হিন্দীটো অলপ বুজিবলৈ টান হয়। সো সিহঁতৰ কাৰণে মই ইয়াত অসমীয়া অলপমান ইউজ কৰিম আৰু যিহঁতে ইংলিছ মিডিয়াম তেখেতৰ কাৰণে মই ইয়াত হিন্দী লেংগুৱেজটো ইউজ কৰিম। এটা কুৱেশ্যনৰ দুটা লেংগুৱেজ ইউজ হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে চাব কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ পেপাৰখিনি। এতিয়া আপোনালোকৰ এটা সন্দেহ আছে যে সেইটো আহিব কি আহিব নোৱাৰে। সো আগৰ কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা पैटर्न तो बेलेग आसिल, एटिया पैटर्न बिलक बेलेग होल। पहले की जो पैटर्न थी वो पहले अलग था, अभी का थोड़ी अलग है क्योंकि पहले एमसीक्यू सिर्फ 10-12 आता था, लेकिन अभी एमसीक्यू 40 एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 45 मार्क का आता है। तो बाय द वे प्रोसेस पे ध्यान देंगे और देखते हुए चलेंगे कि हमें क्या करना है, राइट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, हु प्रेसिडाइज ओवर द लाहौर सेशन। लाहौर जो सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, माने ইয়াত হ'ল 1929 চনৰ লাহোৰ কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল। সো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, জৱাহৰলাল নেহৰু। আপোনালোকে আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত মানে মোৰ লগত বহুত কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে 2014, 15, 19, 20, 21, 22, 23 বহুত ইয়াৰৰ পেপাৰখিনি আছে। মই পেপাৰখিনিও দিম, কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ বহুত পেপাৰ আছে আৰু পেপাৰৰ যিকেইটা MCQ ইয়াত দি আছে এইকেইটা সলিউশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। সো এই সলিউশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেইটো মই গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ, এই সলিউশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ 40 মাৰ্কটো কভাৰ হ'ব, 45 মাৰ্কটো কভাৰ হৈ যাব। যি MCQ আৰু ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ আহি আছে। সো মই যিমানকেইটা চেপ্টাৰ আৰু চেপ্টাৰ ৱাইজো যাম, মই চেপ্টাৰ ৱাইজ আপোনালোকে এইটোও পাব মোৰ চেনেলত। আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ইয়াত একো টেনশ্যন নাই, আৰু বেলেগ কিবা ছাবজেক্ট যদি বেক হৈছে বা বেলেগ বেয়া হৈছে এইটোও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক। আৰু মই চাই আছোঁ বহুতজনৰ ষ্টুডেণ্টৰ ইংলিছ অসমীয়া সকলোৱে ছাবজেক্টে মানে বেছিভাগে বেয়া কৰিছে ষ্টুডেণ্টজনে। চ' তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ, কাৰণ মই ইমান দিন মোৰো কাম আছিল। তথাপি এতিয়া হ'ল যে এইবিলাক কিন্তু লিখি লওক, এইটো এটা নোটছ বনাওক। মোৰ যদি ভিডিঅ' চাই আছে সোনকালে এটা নোটছ বনাওক। মই বহুত পেপাৰবিলাক ইয়াত সলিউশ্যন MCQবিলাক দিম, আৰু যি পেপাৰত আহিছে অলৰেডি এইটো কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। মই আগতে কৈ দি আছোঁ, লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছৰ পেপাৰখিনি যি সলিউশ্যন কৰে চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লিখি লওক। যেনেকৈ এইটো কুৱেশ্যনখিনি লিখি লওক, 1929 চনৰ लाहौर कांग्रेस अधिवेशन कोने सभापतित्व करिছিল। बाय द वे मैं आप लोग को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो पेपर मैं दूंगा लगभग मेरे पास बहुत साल का पेपर है, सबका MCQ जो भी आया है आज तक वो सब आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग अपना नोट्स तैयार करें और हमारे ऊपर भरोसा रखें, खुद के ऊपर भी भरोसा रखें, और आराम से आप एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टाम्प ड्यूटी लगाया गया था, हिंदी में कहना चाहता हूँ ब्रिटिश लोगों ने किस ईयर में शाम में स्टाम्प ड्यूटी लगाया था। असम में स्टाम्प ड्यूटी कब लगाया गया था। तलर कौन चনত ब्रिटिशসকলে অসমৰ टिकट कर आरंभ কৰিছিল। सो इसका आंसर है 1858। 1858 में ब्रिटिश लोगों ने असम में जो स्टाम्प ड्यूटी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएशन दैट टुक initiative in the publication of हेमकोश ऑफ हेमचंद्र बरुआ वाज। तो यहाँ पे दिया है हेमचंद्र बरुआ हेमकोश और प्रकाश क्षेत्र अग्रणी भूमिका लोआ अनुष्ठान टू हासिल। ये देखिए, ये था आपका असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ये वाला आंसर होगा। सो आप लोग ज़रूर इसको लिख लें। वेयर इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी मैं बच्चे लोगों को दिया था, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से कवर करते आ रहा हूँ। हमारे चैनल से जो भी स्टूडेंट जुड़ा है लगभग सभी स्टूडेंटों ने पास किया। मैंने जो भी नोट्स प्रोवाइड किया लगभग वहाँ से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले एग्ज़ाम में। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपने लोग चैनल जड़ित থাকক। सो সোনকালে এইবিলাক লিখি লওক। যেনেকৈ হৰ্ণবিল উৎসৱটো ক'ত পালন কৰা হয় এইটো ষ্টেটখিনিহে লিখিব লাগে। চ' নাগালেণ্ড, ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা। नागालैंडर এইটো লাষ্ট চেপ্টাৰৰ পৰা এইটো কুৱেশ্যনখিনি দি দিছে, चैप्टर लास्ट। उसके बाद जहाँ तक मैं देखा साइंस में भी कई सारे स्टूडेंटों का पेपर ख़राब हुआ है, तो वो भी मैं कवर करूँगा, वो भी दूंगा। और साइंस का इनर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा था इस बार,
तो उसको भी कवर करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉल्ड ए वेल्थ, तलर कोनबिध सम्पत्ति বুলি কোৱা হয়, সম্পত্তি। সো এইটো হ'ল লেণ্ডক মই ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ ৰিভাৰ নেচাৰেল হ'ল, এয়াৰ নেচাৰেল হ'ল, ছান এইটো সূৰ্যৰ ৰশ্মি মানে ছানশ্বাইন নেচাৰেল। চ' লেণ্ডৰ আপোনালোকে সম্পত্তি বুলি ক'ব পাৰে। দ্য গ্ল'বেল ৰাইজ টেম্পাৰেচাৰ ৰিজন, গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হ'ল কাৰ মানে ইয়াৰ কাৰণটো কি? লোকেল প্ৰব্লেম, ৰিজনেল প্ৰব্লেম, পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম, ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰব্লেম। এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰব্লেম বুলি ক'ব পাৰোঁ। তথাপি মোৰো এটা ডাউট আছে, মই এনচাৰখিনি দিলোঁ, তথাপি মোৰ এটা ডাউট আছে, কিন্তু এইটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি এনচাৰখিনি মুখস্থ আছে তলত কমেণ্ট কৰি 1 2 3 A4 1 2 3 এনেকৈ জনাই দিয়ক, বা মই যি এনচাৰটো দিছোঁ সেইটো ৰাইট সেইটোও জনাই দিয়ক। অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, তাৰমানে চাৰিখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰব্লেম বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য বাউণ্ডেৰী বিটুইন নৰ্থ আমেৰিকা এণ্ড দ্য ছাউথ আমেৰিকা, উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা তলৰ কোনটো হ'ব? এইটো होगा पनामा कैनल। पनामा जो नहर है वह क्या करता है? डिवाइड करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को बाउंड्री शेयर करता है, मतलब बाउंड्री बनाता है। तलर या দিদি से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका মাজেৰে সীমা নিৰ্ধাৰণ কোনে কৰিছে? পানামা কেনেল। চ' এইটো মুখস্থ ৰাখক আৰু লিখি লওক। মুখস্থ ৰাখিলে নহ'ব, কিন্তু নোটছটো বনাওক এতিয়া, যদি ভিডিঅ' চাই আছে এতিয়াই নোটছ বনাওক। আৰু কি পঢ়িব লাগে না পঢ়িব লাগে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সকলোখিনি মই দি আছোঁ, আপোনালোকে জাষ্ট সেইটো কৰি যাওক। দ্য নিউ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কেম ইনটু ফ'ৰ্চ অন, দ্য ভাৰতৰ নতুন সংবিধান বল্লভ কৰা হ'ল কেতিয়া হ'ল? 26 जनवरी 1950, 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत की नई संविधान लागू हो चुकी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द फेमस क्वाट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? अच्छा, यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन शुरू हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र विख्यात उक्ति टू कौन नसील, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये था उनका। तो ये लिखना पड़ेगा, स्लोगान था उनका। भारतीय जातीय सेना वाहिनी मूल स्लोगान टू की असिल, ये सब लिखना पड़ेगा। तो बाय द वे अब यहाँ से 2 मार्क का जो क्वेश्चन आता है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? येस, ये वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ। सो এইটো খুবই महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण एन्सार क्वेश्चन বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ এনচাৰখিনি আপোনালোকে নিজে ওলাই পঢ়িব লাগে। আৰু ছ'চিয়েলৰ যদি মাৰ্ক আনিব বিচাৰে, চ' ভেৰি ইজি ৱে, আপোনালোকে বুকখিনি অলপ একবাৰ হ'লেও ৰিডিং কৰক। বুকৰ যি চেপ্টাৰখিনি আছে তাতে হিষ্ট্ৰীবিলাক, पॉलिटिकल ज्योग्राफी এইটো একবাৰ বুঝি लो। सो आप लोग एक बार रीडिंग करके समझ जाइए कि वहाँ पे क्या दिया गया है, क्या समझाया गया है। सो ये सब मैं क्वेश्चन पर दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह ऑस्ट्रिक होकले भारतीय संस्कृत अकबर और दूटा अवदान लिखा, इस ऑस्ट्रिक जनजाति के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था इस बार। अगर कोई भी बच्चा ये पढ़ा होता तो उसका आंसर जरूर दे सकता था। इस बार MCQ के 2023 का क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास है, पेपर निकाल के आप देख सकते हैं, उस पेपर में इस ऑस्ट्रिक जनजाति से क्वेश्चन आया था कि नहीं। So mention the 2 contribution of Ostrics to the India culture। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पार्टीशन ऑफ बेंगल से बंग विभाजन सृष्टि কৰা পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখনৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা বাংলাদেশৰ প্ৰধান 3টা भौगोलिक संमंडल उल्लेख करा। सो ये सब आपको करना है, खुद से करना है। थोड़ी सी वर्क खुद को भी अपने पे डिपेंड होना चाहिए, खुद से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था बंग विभाजन क्षेत्र ब्रिटिश 3टा अंतर्निहित उद्देश्य की असिल। पार्टीशन ऑफ बेंगल जो किया जा रहा था, राइट द 3 हिडन एजेंडा ऑफ द ब्रिटिश फॉर द पार्टीशन ऑफ बेंगल। एजेंडा को लिखना है कि वो लोग का उद्देश्य क्या था, वो लोग का एम क्या था कि वो लोग पार्टीशन ऑफ बेंगल करना चाहता था। एक तो देखिए, एक एजेंडा था वो लोग एकता को भंग करना, जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी को तोड़ना वो लोगों का सबसे बड़ा एम था। इम्पोर्टेंस एक पॉइंट में बोला, हाईलाइट पॉइंट है ये, कि पार्टीशन ऑफ बेंगल इसलिए किया गया, लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। क्वेश्चन आया हुआ था, तेतिया गवर्नर जनरल कुने से लॉर्ड कर्जन। तो वो जो था मेन वो लोगों का एजेंडा था। पहला एजेंडा की बात करूँ तो पावर, जो पावर था, मतलब एकता में बल है, कहा जाता है ना, मेजोरिटी है, एकता वो लोग तोड़ना चाहता था, पहला एम था। दूसरा वो लोग क्या करना चाहता था कि वो लोगों को, और एक वो लोग का उद्देश्य था कि वो लोग को शासन करने में, बंगाल में शासन करने में एक गवर्नर जनरल इतना बड़ा बंगाल को नहीं चला सकता, इसलिए उन लोगों ने उसको तोड़ दिए, टुकड़ों में बांट देना, और यहाँ पे एक एक लोगों को अपॉइंट कर देना कि तुम अपने अपने एरिया को देखना, एरिया को, शासन को, अपनी जो वो लोगों का राजनीति मुद्दा था उसको लेकर भी वो एक बड़ा इशू आता है पार्टीशन ऑफ बेंगल का। आप जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ना चाहिए।
अच्छी तरह समझना भी चाहिए। वाई वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट नेम द स्वदेशी मूवमेंट डिस्कस ब्रीफली। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार के लिए इसको बांध के रखे। এবাৰৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এইটো, কিন্তু বংগ বিভাজনৰ বিৰোধী আন্দোলন কিয় স্বদেশী আন্দোলন বুলি জনা যায়, এইটো এনচাৰখিনি বুকত আছে, डायरेक्ट আছে। स्वदेशी मूवमेंट क्यों कहा गया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, बुक के अंदर से क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया शासनकाल ब्रिटिश विरोधी जागरण কাৰণবোৰ উল্লেখ কৰা, ये अच्छा क्वेश्चन था। কি কি কাৰণত অসমৰ 1857-58 চনৰ বিদ্ৰোহ ব্যৰ্থ হৈছিল। সো डिस्कस द रीजन वाई द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड 58 फेलर इन असम। वेरी इंपॉर्टेंट, असम के बारे में डिस्कस है तो आपको पढ़ना चाहिए। असम में 1857 की जो विद्रोह हुई थी, 1857 जो रिवोल्ट हुआ था, वो फेलर क्यों हुआ था, क्योंकि और लीड कौन कर रहा था, मनीराम देवान। कहाँ से लीड कर रहे थे वो बाहर गए थे, असम में वो थे नहीं। वहाँ से उनको जो भी आर्म्स वगैरह भेजना था वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था। उनका कई सारे चिट्ठी ब्रिटिशों के हाथ में लग चुकी थी और तैयारियां ठीक नहीं हुई थी। मेन फेलर का कारण था तैयारियां असम में ठीक नहीं हुई थी, मेजोरिटी नहीं था। जो भी नीचे कास्टनिज्म के लोग थे वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। खासकर अगर किसानों की बात करूं, फार्मर की बात करूं, तो वो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है, तो कई सारे चुनिंदा पर्सन ही पार्टिसिपेट किए थे, जिसके कारण वो जो रिवोल्ट था वो कमज़ोर हो चुका था। बहुत अच्छा है, आप अगर पढ़ेंगे कहानी समझ में आएगा। और हमारे असम के बारे में जानना खूब बहुत ही ज़रूरी है, आप असम में रहते हैं। राइस मेल से आप क्या समझते हैं, ये सब निचली कृषक विद्रोह संक्षिप्त विवरण दीजिए। खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ना है, भारत त्याग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट्स को पढ़ना है, ब्रीफली डिस्कस करना है। देखिए ये और ये है आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इस बार भी आएगा। असम के स्थापत्य कला के गौरव के बारे में, ये लास्ट चैप्टर से है। देखिए आर्ट एंड कल्चर का ये बोला जाएगा, तो लास्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, 4 मार्क है, बहुत बड़ी मार्क है। ठीक है, 4 मार्क का है, तो ये सब करना है, आपको पढ़ लेना है। मैं बस जानकारी दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस सब में डायरेक्ट। और एक बात है ज्योग्राफी से बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, बहुत इजी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, संपद क्या है, संपत्ति क्या है, उसके बाद बहुत इजी, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, नवीकरणीय और नवीकरणीय। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठा के दिया था एग्जामिनर इस बार। अब आराम से लीड कर सकते थे, बना के लिखा जा सकता था, ऐसा क्वेश्चन इस बार भी था। और ये सब इंपॉर्टेंट है। बोलिएगा सर ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2 मार्क है, करना है। এইটো কৰি লওক, এইটো 2টা মাৰ্ক আপোনালোকে পাব। চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু যিমানকেইটা জিঅ'গ্ৰাফিৰ কুৱেশ্যনবিলাক আছে সেইটো বনাই লিখিব পাৰে। वैश्विक तापन वृद्धि, गोलकीय उत्तापन क्यों है, तो आप लोग जाने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, घर में हर घर में 2-3 गाड़ियाँ बढ़ रहा है, पेड़ लोग ट्री को कट कर रहा है, तो कई सारे रीजन निकल के आते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। उससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, वाटर जो है वो बढ़ेगा, समुद्र में पानी आके लेवल बढ़ेगी, सामने जो भी इंडस्ट्री रहेगा, बाढ़ आ जाएगा, उसको ग्लोबल वार्मिंग का वो इफ़ेक्ट कहा जाएगा। सो ये सब पढ़ना है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये MCQ में बनाया गया है क्वेश्चन। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड विच द कॉन्टिनेंट इज़ एलोकेटेड। यहाँ से 2 MCQ क्वेश्चन बना, 2 MCQ क्वेश्चन यहाँ से बना है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन निकालना है, खुद से निकालिए। ठीक है, मैं बस क्वेश्चन दिखाना है। अब समय बहुत कम है, सो क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ। अब स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले, आंसर निकाल ले, लिखो, कोई बात नहीं। पर्यावरण की समस्या क्या है, बना के लिख सकता है। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, बना के लिखा जा सकता है। वायु किस प्रकार प्रदूषित होती है, बना के लिखा जा सकता है। विद स्टेट हाउ आर एयर पोल्यूशन, 3 मार्क का है। पता नहीं सोशल में लोग कैसे फेल करते हैं, आई कांट बिलीव, लेटर मार्क लाना चाहिए। अब इतना दूर था, एनएफ है। इसके बाद ये अलग है ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए। तो इतना था, क्वेश्चन 90 तक था। आई होप कि आपको समझ में आया है। मैं ইমান আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিব পালে। যদি বুজিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনালে হ'ল, আৰু যিমানকেইটা অসুবিধা আছে সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাওক। और आप लोग जुदी बहुत एनेका स्टूडेंट আছে, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या पढ़ना नहीं पढ़े। मैं दे रहा हूँ, बस आप स्टडी करते जाइए। मैं যিমানকেইটা নোটছবিলাক আছে বা কুৱেশ্যনবিলাক আছে সেইটো মই দি আছোঁ, আপোনালোকে জাষ্ট এইটো কৰি যাওক। আৰু সময় খুবেই কম, চ' 1 month बहुत ही कम है।
और शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखता हूँ कितना लाइक करता है, शेयर करता है। ज़्यादा शेयर होगा इस बार, अगर मैं देखूँगा अगर 1000 लाइक हो चुका है और शेयर भी अगर हुआ, लगभग 100 शेयर भी हो चुका, तो मैं आप लोग को स्पेशल एक नोट्स दूंगा साइंस का जितना भी बैक है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन लाइक होनी चाहिए।